guys, welcome to the episode 2 of our podcast, The Desi Banter. This is Nirmal, this is Lynette and Annette. We are talking today about lavish weddings versus intimate weddings. Intimate Close Small, close group in a court people. or something like that. Okay, Though- 2 minutes back Nirmal had said intimate means making out and kissing, but no, intimate He weddings doesn't here. want to admit it on camera that that's what No, he no, said. I admit on the camera, but I just didn't know that. What I is was- intimate? Huh? What is it? Intimate should be used frequently, like, when people are making love and all that. Should not be used for wedding and all. I don't know. But intimate is What do people- close, right? It's small. Yeah, so then you use the word close and small. What do people do on wedding nights? That they get intimate. But you can't say that have intimate wedding and be intimate in the night. Say have a small But wedding. intimacy is mostly like being close. or Lynette has something never like been that, intimate in her life. So. right? Hey, shut up. I don't know. I mean, you guys know better. Indian culture has evolved a lot, मेरे हिसाब से. मेरे को लगता है कि, culturally, we always have been like people who like to do a lot of social outing Or like historically. show off or show शो that ऑफ we have big शो ऑफ तो weddings पहले and था बट जस्ट कल्चरली लाइक हम लोग ने मतलब ऐसा है कि 100-200 years ago like people like to gossip, that is our culture. और अभी जब भी ऐसा पीरियड ऑफ टाइम Gossip से ज्यादा it's like society, right? Like हम हाँ बट like, सोसाइटी हैज close- डेवलप ना. Yeah. But ऐसे Indian culture का ही पूरा वो है ना कि like you have like grand weddings and वो you अभी basically हुआ है. show that. But पहले से like some of my old clients that I see, according to them, Indian wedding is like big fat wedding where the groom comes on an elephant and stuff like that. हाँ. So I had to explain to them कि sometimes it happens but not always. So people have that idea of Indian wedding being like वो very बराबर से grand स्टीरियो and very बट वो बराबर this. से ये कास्ट नहीं किया. बट अगर तू देखने जाए ना, अभी जैसे अपने माँ बाप का अगर वेडिंग हुआ रहेगा तभी लोग आते थे 300 लोग 200 लोग. बट अगर उसके बाद तो अगर देखेगी तो इंडिया में मिडिल क्लास के जैसे ही पैसा वैसा आ गया है तो नाउ पीपल फील लाइक अरे अपने को अभी ज्यादा पैसा खर्चने का है. द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन वेडिंग एंड ऑल ऑफ इट इवॉल्व फ्रॉम द फैक्ट दैट पीपल एक्चुअली नाउ हैव अ लॉट मोर मनी पावर, दे आर रिचर, इसलिए उनको लगता है कि करना चाहिए. माई आइडिया इज कि इंडियन वेडिंग में अगर तुमको खर्चा करना है या नहीं खर्चा करना है ना, पेरेंट्स का बहुत सारा ये रहता है क्योंकि इंडिया इज ऑल ड्रिवन बाय फैमिली एंड ऑल. बट अल्टीमेट डिसीजन जो है वो कपल लोग का होना चाहिए. But ऐसे होता नहीं इंडिया में. India is all about the Majority of family, them are right? Even controlled by about the wedding, a lot of people want to like decide as soon as you turn like 20 something, people come and say कि अरे तुम कब शादी कर रहे हो, तुम कब शादी कर रहे हो. लेकिन वो भी है इंडिया में कि बिकॉज द इंडिया में द माइंडसेट इज कि अगर ये नहीं होगा तो मतलब मेरा सोसाइटी में नाम खराब होगा. खराब होगा. तो वो माइंडसेट अभी जाना बहुत डिफिकल्ट है, चाहे कितना भी पैसा आ जाए. और लोग क्या बोलेंगे कि मेरी बेटी अभी तक शादी नहीं हुई है, और मेरे बेटे की शादी नहीं हुई और है. ऑल्सो कि मतलब अगर शादी करना है तो लाविश स्केल पे कर सकते हैं क्योंकि हम लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं. हम्म. और जिनको बुलाना है बुला सकते हैं एंड इट विल बी बेनिफिशियल टू और अस. पूरा एक स्टेटस की तरह हो जाता है ना वो, like it's Yeah, like just- we want to call 1,000 people for our wedding. Yeah. Like personally I feel spending so much just on a wedding is not right as per me. Like as you said, like having a small intimate wedding with your friends and your family, because if you want a small wedding, your parents don't want that. Your parents want to invite everybody they know, their तो friends. तेरे पेरेंट्स का their ऐसा ही था, उन्होंने उनको neighbors. सबको इनवाइट करना था. सबको invite You're करना blaming है. your parents for all this. No, I try to say whatever I can, right? But पर अभी ना, लास्ट में क्या हुआ? especially in India, you are a little scared of your parents. So at the end, they win. So अच्छा. I mean, we did come to a little bit of a compromise. I did say कि सबको बुलाने की जरूरत नहीं है. हाँ. तो उन्होंने थोड़ा restrict किया अपने आप को. But मेरा व्यू ये है कि पैसा खर्चने का है तो देख अल्टीमेटली अगर पैसा है और अगर तुमको लैविश वेडिंग चाहिए तो तुम कर सकते हो. डेस्टिनेशन वेडिंग, ये वेडिंग वो वेडिंग. लेकिन बाहर का ये लेके लोन लेके और फिर बाद में टू प्लीज पीपल अगर ऐसा करना है तो वो वाला मत करो. वो सही. बिकॉज मतलब 4 दिन की चांदनी के लिए तुम ऐसा अपना 10 साल बिगाड़ रहे हो इन पेइंग ऑफ द लोन. लोग करते हैं लेकिन exactly वो all status status, symbol, exactly वो तुम्हारा status symbol हाँ बन लेकिन जाता वो है कि तुम्हें स्टेटस दिखाना है. मेक्स यू बैंकरप्ट ऑल्सो. तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा Yeah, स्टुपिडिटी है. it's a सबसे benefit. इंडिया में ना मैरिज का जैसे मैरिज का प्लानर्स रहता है, वेडिंग प्लानर्स और वो सब रहता है ना, एक मैरिज का काउंसलर भी होना चाहिए प्री वेडिंग, ताकि अगर सपोज विच इज समथिंग डजंट हैपन क्योंकि सब लोग अपने पेरेंट्स का मान लेते हैं ना कि अभी तुमको बड़ा वेडिंग चाहिए. तो एक पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है कि कोई न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू देके देखो, तुम लोग अगर लोन लोगे ना तो ऐसा प्रॉब्लम होगा. और फिर बाद में कौन भरेगा पैसा उसका अगर सपोज फाइनेंशियल बर्डन है तो, राइट. और अगर तुम लोग को नहीं करना है, जैसे अगर मेरा रहेगा तो मेरे को छोटा ही वेडिंग चाहिए. एंड इवन लाइक इवन इफ आई बिकम अ बिलियनर तो भी मेरे को छोटा वेडिंग चाहिए बिकॉज ऑल द मनी दैट आई हैव आई रादर स्पेंड इट ऑन लाइक millionaires तो सोचे अंबानी और सबका wedding, they spend like so much money हाँ, वो on useless है. everything.
Exactly. But you know, I spoke about this, like just about that Ambani wedding. I was just talking to randomly to my clients, and I was like, this is so Kaun se lame clients and are ye? stupid. I'm I just see clients kidding. everywhere. I feel like you No, know, Leonard, after I sleep, whom do you talk to every No. night? like, what kind, are you talking to wedding planners and all? Like, No, is everything okay between the two of you? अरे no, clients are see for There was- physical therapy. तो like तुम अगर 1 करोड़ खर्च रहे हो तुम्हारे उस पे, तो that money is getting divided. You're paying the हाँ caterers ये वो wedding planner ये वो wedding planner को निकाल दे. Basically, it's that the money is going somewhere. हाँ मनी इज गोइंग समवेयर, लेकिन ऐसा है कि अगर वो तुम ऐसा वो क्रिएट कर रहे हो इकोनॉमी, हाँ. और अगर सपोज वो इकोनॉमी में तुमको लगता है लोगों को जॉब मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, बट दैट मनी इफ यू लाइक यू नो स्पेंड इट समवेयर, और अगर वो कल्चर ही बंद हो जाए तो जितने भी वेडिंग में इन्वॉल्व है ना, दे विल बी एबल टू डू समथिंग बेटर इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो कम्युनिटी के लिए क्या अच्छा है या क्या अच्छा नहीं है. अभी केटरर्स रहते हैं, अभी केटरर्स वेडिंग में हो या किसी के छोटे फंक्शन में भी हो, केटरिंग बिजनेस तो चलने ही वाला है, ऐसा नहीं है. What I'm saying is कि basically अगर तुम्हारा ऐसे large scale wedding हो रहा है, तो तुम अगर catering वाले को पैसे दे, so they are also employing people to serve, to clean, to wash vessels, stuff like that. So basically you're creating employment. वो है, that is one side कि मतलब it benefits the business. और मैं इसके बारे में पढ़ भी रहा था कि इंडिया में एटलीस्ट the amount of money that people spend in a year every year is close to 40 to 50 billion dollars अभी के हिसाब से, after Oh, it's a US, big business. and US में 70 billion dollars है, but US का ऐसा है कि small people but everything is very expensive, Correct. इसलिए overall cost बढ़ जाता है. तो I feel कि वो बिजनेस जनरेट करता है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ठीक है, लेकिन वेडिंग इज मोर ऑफ अ पर्सनल थिंग. आई थिंक इफ यू थिंक अबाउट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द पीपल फॉर जिसके लिए वो बिजनेस जनरेट करते हैं, वो लोग को तो अच्छा ही है. वेडिंग प्लानर को 1 करोड़ दो, 50 lakhs दो एंड ऑल, इट्स ऑल वर्किंग फॉर देम. But only if you can afford it. I know, only if you can afford it. At the cost of you like basically losing your sleep or you know. और ऐसा ही होता है, but majority of the time. Exactly, that's the thing. People are like, you know, the thing is कि a lot of people don't realize कि अगर हम लोग afford नहीं कर सकते तो हमें नहीं करना चाहिए, तो उनको वो स्टेप नहीं लेना है, उनको लोन लेके फिर वो लोग करेंगे. लोन लेके भी करना, और दूसरा ये भी है कि लोन का भी जो प्रेशर आता है ना उनके ऊपर, हाँ. वो इसलिए आता है क्योंकि अगर कभी कभार सेम कम्युनिटी में तुम शादी करोगे, हाँ. लाइक आई नो आई हैव अ फ्रेंड, मतलब जिसने, मेरे को पता है कि मैं कॉलेज टाइम में था तो मैं उसके घर पे गया था और उसने मेरे को बोला, वो यू नो उसका सरनेम शेट्टी में एंड होता है, लेकिन उसने मेरे को बोला कि हाँ हम लोग तो मतलब डाउरी देंगे मेरी बहन के लिए, बिकॉज मेरे को डाउरी मेरे टाइम वापस आने वाला है. हाँ. And what do you think about dowry? What should be done for people who take dowry? It's a serious question. Castrate them. That's it? He was more this thing castrated, he said. Oh, castrated. फिर रेप को क्या करेंगे? तो उड़ा दो. Okay, we are going a little dark here. Let's stick with dowry. Yeah, what do you think dowry? What do you think about the dowry system? I think it is old-fashioned. It should not be done anymore. It is basically exchange of goods, which Barter. yeah. But if I take the side of the parents of the girl, they always think, you know, that we have saved this money for our daughter, and if she wants to have a good life, we'll just give this to her son-in-law or to the No, that's where they make a mistake. Why don't they save that money for their daughter in a form of some investment somewhere where the only daughter will have the rights to use it? Yeah, why do you have to wait for a wedding for that? Exactly. Dowry is basically It's terrible. two men have decided from the beginning that my daughter is going to live in your house for the rest of her life. This is the money to take care of her. Do it. That is But basically why what do dowry. men have to decide everything? That's how it has started and it has gone. And sometimes women don't say anything in these matters, but women do have to stand up and speak up. I mean, I agree some women have filed cases against this and stuff. And I'm not saying all people who give dowry end up in a bad marriage. There are a lot of marriages which, like, the father has given dowry, the husband wife are living happily. We are fine. We are so happy. 50 lakhs our dad gave me. कितना? अच्छा तेरे को 50 मिला? You think my dad will give you? He did give me. My dad, if he gives you 10 rupees also, it will be like a big deal. Okay, I'm going to cut this part. Please, I'm going to cut this part. What if it is up to the couple कि तुम spend करो तुम्हारे marriage पे? So I think that will make most sense, right? I अरे mean, लेकिन couple spend if you कर- can become a billionaire, then you spend whatever you want. Why are you using your parents' money? to पेरेंट्स spend? मनी, अरे वो तो पेरेंट्स का मनी कभी आता है जब भी तुम बोलोगे ना कि मेरे को अभी, सपोज मैं अगर बोलूंगा कि मेरे को वेडिंग छोटा चाहिए, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, जब मैंने अपने डैड से वो डिस्कस किया था कि मेरे को रिसेप्शन जो है वो छोटा चाहिए, तो पहले तो हमारा डिस्कशन हो गया था कि तेरे को क्यों चिंता करना है, पैसा तो मैं देने वाला हूँ. तो आई सेड नो, आई विल पे फॉर इट, लेकिन मेरे को छोटा चाहिए. तो बोलता है नो, why are you worried about it? I will pay for it, and इसलिए मतलब मेरे को ज़्यादा लोग बुलाने हैं. तो You know, Nirmal, in India, most parents basically save only money for their kids' wedding Yeah, from before. yeah. They have already planned कि Especially if they have girls, yeah. करेंगे.
and stuff like that. I mean, yeah. it's like- अगर पेरेंट्स सामने से बोले ना कि मेरे पास पैसा नहीं है सपोज, तो फिर बाद में बच्चे लोग को मतलब ये रहेगा, बट पेरेंट्स अगर बोल ही रहे But I'll tell you something. Indian parents are so much like vested in their children's lives. It's not like in America where after 18 the kid is on their own. They can आफ्टर do 18 whatever they leave the job kid they on the want. footpath. Exactly. वैसा इंडिया में नहीं है. इंडिया में your parents will take care of you till like they die also. तो Like, क्या करना basically, चाहिए, पेरेंट्स को क्या तो बोलना चाहिए? parents एक तो पेरेंट्स को एग्जैक्टली तुम बोलो कि let us handle it, but ऐसे वो हमारे यहाँ पे कल्चर ही नहीं अभी तक डेवलप हुआ है कि youngsters basically can stand up and say कि we will spend whatever we want on our wedding based on how much we are earning. तुम लोग वो तभी बोल सकते हो अगर सपोज तुमने अपना ज्यादा टाइम जो है पेरेंट्स के साथ 18 साल के बाद स्पेंड नहीं किया है, क्योंकि तुम लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो आई थिंक यू कैन बी मोर आउटस्पोकन. अगर तुम लोग पूरा लाइफ अगर बॉम्बे में हम लोग रहते हैं, अगर मैं यूएस नहीं आता, पेरेंट्स के साथ ही रहता, क्योंकि वो भी एक कल्चर है कि सब लोग साथ में ही रहते हैं, Correct, correct. तो फिर बाद में उसमें लाइक रिटेलिएट करना और अपोज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यू आर नॉट गोना से कि अरे व्हाट, व्हाई आर यू स्पेंडिंग Yeah. सो मच वेडिंग सो मच पैसा ऑन मी, कि वो लोग बोलेंगे अरे आई कैन स्पेंड. अभी कौन इंडिया में काम नहीं करता है अपने जनरेशन में, एवरीबडी वर्क्स. और जो Yeah. हाउस वाइफ है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनका ऑलरेडी शादी हो गया, बट जो लोग अभी ऑलरेडी लाइक मतलब मेरे कजिन्स भी है राइट नाउ, लाइक दे ऑल आर लाइक उसका शादी हो गया, बिफोर वेडिंग शी वाज वर्किंग, नाउ आल्सो शी इज वर्किंग, तो शी सेड दैट शी इज नॉट गोना लीव द जॉब बिकॉज दैट कीप्स यू ऑक्यूपाइड. और अगर तुम अभी के जनरेशन में सिटीज और मेट्रोज में रह रहे हो, थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव. अगर पैसा होता तो डेफिनेटली लाइक मैं तो डेस्टिनेशन वेडिंग भी करता एनेट के साथ, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन अगेन ऑल ऑफ दिस And it would have not gone. व्हाई, तो मेरे बाजू में कहाँ कौन रहता जाता है? तू डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए अगर जाना होता? किधर जाना है तेरे को? मैं तो हवाई जाता. हवाई? हाँ. और सबको फैमिली को हवाई फ्लाई करता तू? हाँ अरे वाह, One सही है। flight you would have booked. हाँ वही ना, एक चार्टर फ्लाइट एक अपना खुद का. वाह, वाह, वाह। कितने लोगों को बुलाता फिर? तू रहता, तेरा मालूम नहीं. नहीं 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 नहीं, नहीं तो जोकिंग रे. Like this तू इतना खर्चा swimming करके आती है वहाँ पे. खर्चा वर्चे का बात कर रही है, इसलिए मैं बोला वहां पे आके बोलेगा अरे ओ ये वाला, ये $50 का. लाइन होती है, रायन हम लोग भी साइड में शादी कर लेते हैं, फोटो डाल देंगे. लगे अपना हाथ, भी हो जाएगा साथ में। एक पॉडकास्ट भी शूट कर लेते. हवाई. What will be your choice of destination wedding? Somewhere in Africa, Oh wow. somewhere in the open, something like that. एंड इट Italy, Oh. And it is the top. इटली में किधर? Amalfi Coast. Oh my wow. god. प्रोनाउंसिएशन में भी तकलीफ होता है अपने को. मैप पे देखा भी नहीं है मैंने. अरे तेरे क्विज में पूछा था अमाल्फी कोस्ट, Amalfi Coast. तब मैं से खुद उसके भूल याद है. चुका हूँ. Oh man. मेरा कहाँ पे होता तेरे को मैंने पूछा ही नहीं. She went across everybody कि तू बोल ताकि मैं प्यार से बोलूंगी स्पेन. We always overlook the fact that India में there are like 4 to 5 days of wedding functions happening. So खर्चा keeps increasing every day. Yeah. So और यहाँ पे एक छोटा सा reception होता है, and that's why what do you think can be done to get it down or to cut some of that? Like you're talking about standardizing the marriage, right? तो मेरे को लगता नहीं वो possible है. The most important reason for that is कि इंडिया में इतने सारे religions है ना, कि तो अगर एक religion में change करेगा ना, तो फिर बाद में like dowry is something that impacts everyone. बट मैरिज का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है. तो मैरिज का कॉन्सेप्ट में से लोग बोलते हैं कि तुमने डाउरी तो बंद कर दिया ना, अभी हमको 3 दिन करवाना है वेडिंग, 4 दिन करवाना है, वो हमारे ऊपर छोड़ो. तो वो डिफिकल्टी है. यू कैन नॉट स्टैंडर्डाइज द वेडिंग इन इंडिया सिंपली बिकॉज कि इतने सारे रिलीजन है, इतना सारा डिफरेंस है कल्चरल, तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से. Or we can just concise certain things together. Like you can do like Mehendi Sangeet in one day or things like that. So you try to make Suhagrat everything in one day. वही पहले कर लो स्वागत. फेरियान स्वागत इन वन डे. हाँ नहीं जो भी है, जैसे मेहंदी next day. 5 दिन स्प्रेड आउट करने से अच्छा कि अगर तुम 3 दिन में अगर कर पा रहे हो. अरे बट 5 दिन वो तो तू ऐसे देख रही है, बट जस्ट जनरली द फैक्ट इज कि क्या कुछ भी की चीज, आई थिंक मुझे लगता है वो तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि तुम लोग कितना एक फंक्शन में कर सकते हो, इवन लाइक फिजिकली तुम्हारे में कितना कैपेसिटी है. उसके ऊपर भी अभी अपने को ये टाइम पे नाउ यू हैव मोर नॉलेज अबाउट डिफरेंट थिंग्स, राइट? सो यू आल्सो हैव टू थिंक अबाउट इन टर्म्स ऑफ कि अरे कितना क्या वेस्ट हो रहा है चीजें एंड सब. लाइक अभी शादियों में इतने सारे हम लोग फूल लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पर एंड में सब गार्बेज, हाँ. सब कुछ वेस्ट. हाँ बट वो तो गार्बेज का there have to be like different ways to repurpose things now. I feel like ऐसे कुछ होना चाहिए. वो तो बराबर है, वो सोचना चाहिए. आज सपोज किसी का भी ब्राह्मण लोग रहते हैं, वो अपना जनोई का फंक्शन करते हैं, राइट? तो उसके अंदर अगर तुम बोलोगे कि तुम इतना बड़ा फंक्शन मत करो, ऐसा नहीं होता, करना पड़ता है उसको. तो द पार्ट दैट यू आर सेइंग इज बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर, वेडिंग इज ओनली एन आउटकम.
ट्रेडिशन कल्चर की वजह से बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे 3 दिन 4 दिन का फंक्शन होता है. कैन यू लाइक रिड्यूस दैट? आई डोंट थिंक So सो. if you're talking about tradition, culture, and caste, so now when there are so many intercaste marriages, if they are having a traditional wedding, don't you think that 3 days of one tradition and 2 days or 3 days of other tradition makes it more expensive and more stressful on the whole family? इंटरकास्ट में तो होना ही चाहिए, जैसे मेरा और एनेट का इंटरकास्ट था, बट हम लोग का तो मतलब इंटरकास्ट में पेरेंट्स को भी कन्विंस करना था एंड वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर. तो हम लोग को लगा कि हम लोग का एक चीज़ अच्छा हुआ कि मेरा रिसेप्शन था हिंदू साइड से, एनेट का था, तो वी एनकाउंटर्ड एंड वी एंडेड अप कॉलिंग फ्यू पीपल. ज़्यादा लोग नहीं थे कि जैसे मेरे रिसेप्शन में, और हम लोग का कोर्ट मैरिज भी यूएस में हुआ था. हम लोग ने शादी भी इंडिया में नहीं किया था क्योंकि हमको पता है कि थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे. नाउ अभी इंटरकास्ट हो रहा है एंड इफ बोथ द पेरेंट्स आर ओके, बोथ द साइड्स, तो एक है कि यार थोड़ा ना ईगो पे भी आ जाता है पेरेंट्स के कि हमको हमारा चाहिए. इसकी वजह से मेरे और एनेट ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे करेंगे ना. और एनेट तो तुम्हारे पास प्रिविलेज था कि तुम यहाँ पे हो. बहुत सारे लोग तो इंडिया में ही है ना, तो वो लोग को जैसे है कि एज यू सेड कि तुम पेरेंट्स के साथ रहते हो, तो तुम लाइक पहले तो मुश्किल से पेरेंट्स मान गए हैं फॉर दिस इंटरकास्ट मैरिज. सो नाउ ऑल दे वांट टू डू इज प्लीज एंड जस्ट लाइक गेट एवरीथिंग डन. जैसे मतलब अगर लोग इंडिया में भी इंटरकास्ट कर रहे हैं ना, तो सबसे इजी है कि मतलब पहले तुम अपना शादी जो है अगर कन्वीनियंट है तो मतलब कोर्ट मैरिज में या ऐसा कुछ करके मेन फंक्शन खत्म कर दो. उसके बाद तुम्हारे फैमिलीज के लिए अगर चाहिए तो एक कॉकटेल पार्टी रखना है तो उसका एक रखो. हाँ, पर वही तो मैं बोल रही हूँ कि इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को चाहिए, अगर से टेक फॉर एग्जांपल हिंदू एंड क्रिश्चियन वेडिंग, तो तुम्हारे पेरेंट्स को चाहिए कि एक चर्च में भी हो तुम्हारा वेडिंग, एक तुम्हारा टेंपल में भी हो वेडिंग. तो उसके लिए ना जो कपल रहते हैं उनको भी ढीठ होना पड़ेगा. दे विल हैव टू बी स्टबर्न. ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कॉम्प्रोमाइज चाहिए पेरेंट्स के साथ तो बोलो कि देखो अगर अपना वेडिंग अगर यहाँ पे हो रहा है ना, तो अपना रिसेप्शन होगा. मोर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे वांट के रिसेप्शन हो. ये को अच्छा कॉम्प्रोमाइज है. शादी करो कोर्ट में, उसके बाद अपना अपना टाइप का अगर रखना है रिसेप्शन तो रखो, या कंबाइन करो वो रिसेप्शन. दैट विल रिड्यूस. क्योंकि शादी अगर तुम अपने अलग हिसाब से करो, एक हिंदू एक मुस्लिम या एक कैथलिक, नहीं, उसमें हर एक पूरा दिन निकल जाता है. What do you guys think is better from your personal point of view, to have like specific number of guests whom you want or whom you like, or sometimes people just call random, कि इसके relatives, उसके relatives, वो office से उसके friend, उसकी family, इसकी family. What do you guys think it should be concise to? When you're discussing this matter with your parents, they obviously want to invite like their friends and their family and neighbors and their cousins or whatever. And sometimes when you are on the stage as a bride or as a groom, you don't even know who's coming to wish you. You don't even know their name. I don't think that makes any sense कि जो लोगों को तुम जानते नहीं हो वो लोग तुम्हारे वेडिंग पे आ रहे हैं. मेरे को लगता है कि अभी के जनरेशन में जितने भी लोग हैं ना, सब लोग एग्री करेंगे ये माइंडसेट को कि मतलब जो लोगों को बुलाना है ना, जस्ट जनरली कम लोगों को बुलाओ. क्योंकि मतलब तो अभी का जनरेशन ऐसा है कि मतलब इट इज सो बिजी एंड ऑक्यूपाइड ऑल ऑफ अस कि लोग ट्रैवल भी ज़्यादा कर रहे हैं. पहले क्या था कि इंडिया में अगर लोग रहेंगे पेरेंट्स के साथ ना, तो तुम्हारा सोशल गैदरिंग भी ज़्यादा होगा एंड मोर पीपल विल नो यू. अभी ऐसा है कि जैसे ही अपना ग्रेजुएशन हो जाता है, एवरीबडी गोज टू यूएस, सम पीपल गो टू यूके पढ़ाई करने के लिए. कोई इंडिया में भी रहे तो एक्चुअली अभी थोड़ा कल्चर भी थोड़ा डिफरेंट हो गया है ना, कि लाइक पीपल मेक देयर ओन फ्रेंड्स, दे गो आउट फॉर डिनर. थोड़ा वेस्टर्न जैसा कल्चर हो गया, बिकॉज इंडिया में भी काफी सारा रेस्टोरेंट्स और वो सब आ गया है. बट ओवरऑल अगर तुम किसी से भी पूछोगे ना, तो वो लोग वही बोलेंगे कि अपने को कम लोग चाहिए. And as you said कि American weddings में everything is damn expensive. Like your per plate or whatever, your catering, your dress, even the wedding dress is so expensive. एक ही बार पहनना है, उसके बाद तो फेंकना है. हाँ, it's so अरे 1000 और वो लोग वापस भी नहीं लेते. लोग फेंकते नहीं होगा. I think they cut it right for the baby. जो भी है. Have you guys kept it or so you? So you're gonna cut it for the baby? No, people. You can even donate a wedding dress. हाँ, exactly. Yeah. डोनेट बन कुछ मिलेगा वापस. Donate Donate is free. It is. Nirmal has to learn what the definition of donate is. Exactly, donation. According to Nirmal, the meaning of donate is like this. अरे डोनेट के बाद कुछ तो टैक्स एग्जेम्पशन मिलना चाहिए ना. If you had a chance To go back. how would you change your marriage? How it happened, like the wedding function and all that? Other than changing the groom, anything else? If you have to change, what would you change? Actually, I would keep it almost the same. I would just invite less people, I feel. And now thinking about, as I just talked about wastage and stuff, I would have focused more attention there कि ताकि बहुत चीजें waste ना हो. क्योंकि मेरे को है ना, ये हमारी कुछ साल बाद I read this on Twitter. फैक्ट चेक करना आने. कि She's talking about sustainable weddings. sustainable weddings. बट किसके, I'm just asking कि किसके साथ ऐसा अपने को मेरे पहचान वाले में तो किसी का सुना नहीं. रिसेंटली ऐसे सुना था, ये इंसिडेंट हुआ and that made me little mad
because a person from UK went to India to get married and it was like कुछ 50 या 100 tons का उन्होंने वो garbage ऐसे Oh, this is in Himachal, right? Himaचल में this happened and I was like so upset and then suddenly I realized कि damn हमारे wedding में तो I didn't realize कि कुछ wastage हुआ था कि क्या हुआ था. Like my ideal thing, अगर मेरे को चाहिए तो मैं खाली जो हमारा कोर्ट मैरिज हुआ है ना बस उतना ही करता और उसके बाद जो यहाँ पे दोस्त लोग और वो सब है I would have just kept like you know the wedding or the gathering like you know so I would have timed it in such a way कि इसके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स आ जाते हैं and that's it और मेरे को ज़्यादा लोग चाहिए ही नहीं वेडिंग में. मेरे को अगर करना है ऑन अ सीरियस नोट तो मैं जाता और जो हमारा इंटरकास्ट वेडिंग में तूने बताया ना कि हाउ वी कैन कट डाउन ऑन अ लॉट ऑफ फंक्शंस शायद मैं इंस्टेड ऑफ 2 रिसेप्शंस में एक ही रिसेप्शन रखता मैं उसकी एफर्ट करता. आई नो दैट आई वुड हैव बीन अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ रीजंस आई वुडंट मेंशन लेकिन मुझे लगता है कि मैं ट्राई करता कि एक ही रिसेप्शन रखता लेकिन जो मैंने कोर्ट मैरिज किया था वो मैं यहाँ पे भी कोर्ट मैरिज करता इंडिया में भी होता तो वो मैं कोर्ट मैरिज So you're saying like a court marriage and just a simple reception, But not, one reception. not religious. no religious one Just reception everybody for come, meet. both the sides to come. Beautiful. Wow. Nirmal would have never done it, but he's just saying for other people. No, I would have done it. If he wanted, he would have done it. तुम लोग जाओ शेर के मुंह में अपने पैर हाँ, तुम लोग झगड़ा करो और शादी तोड़ दो. मेरा तो हो गया, मेरी तो बच्ची आने वाली है. I'm happy. इसीलिए मैं से यहाँ पे ज्ञान बांट रहा हूँ कि जाके तुम लोग बोल्ड बनो और बोलो कि सिर्फ कोर्ट मैरिज. तूने बोला 10 साल पहले ना 10 साल पहले मैं ये करता. Talking about matchmakers, did you guys Oh yeah, वो Netflix वाला. What's the name? Taparia from Mumbai. Seema. हाँ. Myself. And myself Seema Taparia from Mumbai. She reminds me of Laini always. Hey, why? Because I'm the matchmaking auntie. I never मैंने किसी का भी तक मैचमेकिंग नहीं. एक्सप्लॉइटेशन है वो वेडिंग के नाम पे मेरे You watched it? I have not watched it. मैंने खाली एक एपिसोड देखा लेकिन I know that all the friends that I have here in US, some of the Americans and all, उनको तो बहुत ही अच्छा लगा वो शो. Everybody is like so much fascinated with India and like the wedding culture and everything. अब ये मैचमेकिंग का तो क्योंकि अब तक डेली करो तुम्हारे पास यहाँ पे तो बेचारे वो लोग एप्स वेब्स पे ढूंढते हैं लोगों को. तुम्हारे पास तो एक रियल पर्सन है who's like finding matches for you and stuff. Like that's like a different concept. और इंडिया का वही सीन है कि मतलब इंडिया के जो भी क्रिएटिव लोग हैं ना वो लोग खाली इंडिया का 2 ही पिक्चर दिखाते हैं. एक तो मतलब स्लमडॉग वाला बहुत सालों तक दिखाते हैं या तो अभी पूरा एकदम एक्स्ट्रावेगेंट लाइक यू नो वेडिंग वाला. But I thought it was really fake that. पूरा फेक था स्क्रिप्टेड. The way they are acting, वो मखाना वो स्मूथ करके वो खिला रहा है some weird guy. और वो एक बंदा रिच बंदा और पता नहीं क्या वो वियर्ड चीजें बना रहा है सीमा टपारिया के लिए. उसकी मम्मी ने बोला कि अरे देखो मैंने अपने बेटे की वाइफ के लिए देखो आकाश ऐसे कुछ नाम था उसका. She remembered everything. इतना सारा मैंने गोल्ड और ये सब रखा है. ये सब प्लास्टिक के डब्बों में था. क्या गोल्ड लगा है? गोल्ड गोल्ड वो बाप सोना सब प्लास्टिक के डब्बे में बैठ के मतलब that show was everything that इंडिया में मतलब जितना भी बोल सकते हैं in a nutshell कि जो चीज नहीं करना चाहिए ना वहां से सीखो. और वो दिखा रही प्लास्टिक के डब्बों में गोल्ड के नेकलेसेस का. So where will they keep like? अरे मतलब तू सोचना कि एक्चुअल डब्बों में गोल्ड नहीं रहेगा डायमंड रहेगा. नेकलेसेस का सेपरेट बॉक्स आता है ना. Okay, so here we come to the end of another podcast. Thank you everybody for watching. Anything else to say? Baby is not yet arrived. Baby is not yet arrived. 2 days to go. Plus, please like, share, subscribe, leave your comments, For And- Nirmal. and you know, hopefully, like you know, we can invite some. Please send wedding invites. Yes, please. If you have any questions on weddings, definitely reach out to me. He'll give you very bad advices. No, mine was intercaste wedding. I went through the best experience. Okay. Let's see. Okay, there we go. Goodbye everybody. Take care. Desi Banter signing off. Bye bye. Bye. Bye.